Okay. Hello, everyone. Good afternoon. Welcome to this session of the Virtual Health Forum by Canada, India, USA Development Forum in partnership with the PCHS Foundation. So I'll just go over. I'm the interim CEO of PCHS Foundation. My name is Tejas Aivalli. The PCHS Foundation is a Brampton-based charity that works closely with the Punjabi Community Health Services, also known as PCHS. The foundation's mandate is fundraising, and we fundraise primarily for the Langar on Wheels program that is run by PCHS in partnership with Seva Food Bank. The foundation was launched in 2018. With the onset of the pandemic, the foundation underwent a leadership change, and the foundation was relaunched last month with a new website and a renewed focus on our social media engagement. So we have been advertising and putting up content on different topics related to the South Asian population, such as health and mental health and social issues on our Instagram account, our Twitter account, Facebook, and LinkedIn. So if you're on any of these channels, please do follow us. So as part of, as I mentioned, through this session, we are collaborating with the Canada, India, USA Development Forum, or CIUDF, on this health forum session to further the foundation's work and also to raise issues that are important to the South Asian community. This session would not have been possible without the efforts of our summer students, Ranjit Saini and Jasmeet Benepal, who both joined us. So thank you to both of them. And for any more information, please visit our website at pchs.foundation. Thank you. Vipulji? Sure. Thank you for the opening remarks, Tejas. So Canada, India, USA Development Forum is an Ontario, Canada-based not-for-profit organization working to promote bilateral and trilateral relations between Canada, India, and USA. CIUDF, as we call it, short form, organizes events, conferences, and speaker series lectures with prominent corporate and political leaders in all three countries for ideas exchange and knowledge sharing. The forum recently opened up for memberships, and we currently have 28 companies or professionals who have joined as members so far in the last 8 to 9 months, with the goal to raise the membership to 300 or more by December next year, as we are getting more into in-person roundtables, in-person meetings now. So hopefully that number will grow. I myself is the founder, president, and CEO for Canada, India, USA Development Forum. And this is our website. If you want to find out more, Canada, India, USA Development Forum.com. If you have a list of the activities, Tejas, we can quickly go through that. This is what we normally do. Canada, India Insight Conference once a year. Canada, India, USA Trilateral Conference, also once a year. We do several business leaders roundtables, several political leaders roundtables, the membership expansion, which I just talked about. We do several member networking events, the first event starting next week. We do several consul generals roundtables, education forum with various colleges and universities all across Canada, now also from US, and also from India as well for the education forum. Health forum, which we are conducting right now. This is our session number 9. Actually, we have done 8 health forum sessions so far. This is number 9, and there'll be 3 more in the next 3-4 weeks. So we also have a Canada India Insight e-paper, and then we do several webinars and virtual sessions on current affairs and issues of importance. Some of these activities are done in association with our media partner, Impact Media and Events Corporation. As a matter of fact, we just finished a major Make in India conference on IT and manufacturing 15 minutes ago. So we had practically all the big companies, from Tech Mahindra to TCS to NASCOM to High Commissioner of India, Invest India, a lot of people participated. So that just finished 15 minutes ago, and now we are into this health forum. So that will tell you about the kind of work we do.
Okay, so before we go to introduce Asma ji, can we just quickly, yes. All right, so let us recognize the support, of our sponsors, because of whose support we are able to do these activities. So the Brampton Health Forum is funded in part by the City of Brampton's Advanced Brampton Fund, and we are thankful to our partner organization, PCHS Foundation, for putting this together and for helping us with the other sessions too, as well as Suno Canada. And the matching funding support is provided by Truly Financial, Irwin Accounting and Tax Services, Best Ayurved, Process Research or Tech, Dentistry on 10, Nanak Flights, Kotak Personal Injury Law, Tangentia, Cranes Life Sciences, Blue Umbrella Financial Services, and Lotus Funeral and Cremation Center. So these are our sponsors, and of course, a big thank you goes to all the 28 members of the forum, who provide us with funding support, with some referrals for speakers and more. So with that, Tejas, feel free to introduce our speaker for today, Asma ji, and the topic. Our speaker today is Asma Khan, who is the Community Outreach Coordinator at Heart House Hospice. She has a rich experience of over 8 years on raising awareness on hospice palliative care in Peel region, Halton region, and Etobicoke. Asma holds a bachelor's in pharmacy from Pakistan and master's in pharmacy and administrative sciences from USA. In Canada, she studied addictions and community services in 2009, and since then has been actively working in social services. Asma is affiliated with the Malton Women Council as well as a project coordinator on Mentorship Connections for Success, a project for newcomer South Asian professional women. She is also a group facilitator with Catholic Family Services of Peel Dufferin, working with mothers and children who have witnessed abuse. Asma is extremely passionate about working with marginalized communities and a strong advocate of diversity, equity, and inclusion. She is currently a member of the Advisory Committee on Anti-Racism and Diversity at Hospice Palliative Care Ontario, as well as the Equity, Diversity, and Inclusion Action Committee at Brampton Etobicoke Health, Ontario Health Team. She represents Heart House Hospice at the Regional Diversity Roundtable of Peel. Asma has also served as Vice President on the Board of Directors at Malton Women Council. Asma speaks on health and social issues through South Asian media in Peel region. Today, Asma will be speaking to us on the very important topic of end-of-life care, a topic that she knows very well about and has spoken about. So Asma ji, over to you. Thank you so much, Tejas, and thank you PCHS Foundation and Canada India Forum, US Canada India US Forum, sorry, correct me if I'm wrong. मेरा नाम अस्मा खान है, जैसे कि तेजस ने बताया अभी, और मैं काम करती हूँ as outreach coordinator with Heart House Hospice. थोड़ा सा मैं बिकॉज हम साउथ एशियन कम्युनिटी को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं as far as I understand, मैं हार्ट हाउस हॉस्पिस के साथ 2013 से अटैच्ड हूँ और ये लोग काम करते हैं अराउंड पैलिएटिव केयर के। तो सबसे पहले तो हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि जी पैलिएटिव केयर क्या चीज है ना। पैलिएटिव केयर, और मैं बिल्कुल आई वुड लाइक टू, मैं सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल यूज करूंगी कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं ये मैसेज उन तक पहुंच जाए और वो इसको अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। पैलिएटिव केयर बेसिकली किसी को भी कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी, जिसको हम कहते हैं कि कोई पीड़ित बीमारी अगर किसी को भी हो जाए और डॉक्टर्स ये बोल दें कि जी ये इसकी बीमारी बढ़ने वाली है, यानी बीमारी इसकी बढ़ेगी, इसका क्योर पॉसिबल नहीं है, केयर पॉसिबल है, क्योर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने पैलिएटिव केयर की जगह एक और टर्म सुना होगा, टर्मिनल इलनेस। हमें से बहुत लोगों को नहीं पता होता, बहुत साल पहले मुझे भी शायद नहीं पता था, है ना। तो अगर किसी को भी कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि जो टर्मिनली इल कहलाते हैं या प्रोग्रेसिंग इलनेस है, फॉर एग्जांपल 4th स्टेज का कैंसर है या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो उसको हम पैलिएटिव डायग्नोसिस बोलते हैं। तो उस वक्त जो उसकी केयर शुरू होती है वो पैलिएटिव केयर होती है। अब पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल में मिल सकती है, ठीक है। पैलिएटिव केयर जहाँ भी मरीज मौजूद होता है लॉन्ग टर्म केयर में, हर जगह पैलिएटिव केयर है। अब होता ये है कि जब डॉक्टर्स ये बोलते हैं या हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रोग्नोसिस ये हो कि इस मरीज की जिंदगी या इसका जीवन 6 महीने या साल से ज्यादा नहीं है,
ठीक है, 6 महीने या साल से ज्यादा नहीं है, तब वो मरीज जो है वो हॉस्पिस की केयर के लिए क्वालिफाई करता है। यानी मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब ऐसा कोई भी मरीज जो पैलिएटिव है और उसका प्रोग्नोसिस ये कि अब इसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि ये साल और 6 महीने के अंदर इसकी डिक्लाइन होगी और ये डेथ की तरफ जाएगा, तो फिर वो हॉस्पिस की केयर के लिए क्वालिफाई करता है मरीज। ठीक है, मैं बार बार चीज रिपीट कर रही हूँ कि ये हॉस्पिस की सर्विस और पैलिएटिव किसी को भी हो सकता है। हम जब भी एंड ऑफ लाइफ की या डाइंग की बात करते हैं या हम बीमारी की बात करते हैं, तो हम खुद से अस्यूम कर लेते हैं कि ये सीनियर्स या बुजुर्गों के लिए होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। और मैं आपको थोड़ी स्टोरीज भी अगर मैं सुना सकी तो मैं सुनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस से कि छोटे बच्चे भी बाज़ दफा होते हैं और हाँ, उसको देखकर हम भी वी आर डीपली टच्ड। हालांकि हम प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, लेकिन आसान नहीं होता देखना ऐसे लोगों को, है ना। छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ दफा यंग मदर्स होती हैं। मैं बिकॉज आई स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, मैं अपने काउंसलर्स को हेल्प करने के लिए विद द लैंग्वेज पीस 2-4 दफा विजिट्स पे भी गई हूँ, क्योंकि वरना मेरा काम फ्रंट लाइन पे नहीं है। तो उसमें 41 ईयर्स ओल्ड साउथ एशियन मदर जो सिर्फ हिंदी बोल सकती थी या जो सिर्फ उर्दू बोल सकती थी, छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे, बुजुर्ग, तो किसी को भी ये हो सकता है। ठीक है, तो एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये सारी सर्विसेज कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि हम लोग पार्टली मिनिस्ट्री से फंडेड हैं। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हार्ट हाउस हॉस्पिस 1985 से काम कर रहा है फील्ड के अंदर, और मैं जिस पोजीशन पे इस वक्त काम कर रही हूँ, ये बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन है। तो मैं इस वक्त हार्ट हाउस हॉस्पिस को रिप्रेजेंट करी, क्योंकि मैं वहां से ज्यादातर फंक्शन करती हूँ। लेकिन जो जिस प्रोग्राम पे मैं हूँ, उसमें 2 और ऑर्गेनाइजेशंस या संस्था जिसको आप कहते हैं, अक्लेम हेल्थ और डॉर्थी ले हॉस्पिस भी शामिल है। ठीक है, अक्लेम हेल्थ जो है वो मिल्टन, ओकविल और जॉर्ज टाउन वाले एरिया को, यानी हॉल्टन को हेल्प करता है, और डॉर्थी ले हॉस्पिस जो वो इटोबिको को हेल्प करता है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन का एक, जिसे कहते हैं ना, एक इश्तराक या एक कोलैबोरेशन है। अब पैलिएटिव केयर मैंने आपको बताया, फिर हॉस्पिस केयर का ये होता है। हॉस्पिस केयर का ये होता है कि जैसे, और बिल्कुल सिंपल में हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल, गॉड फॉरबिड, अगर मेरे घर में किसी को पैलिएटिव डायग्नोसिस हो गया, है ना, अब मैं हेल्प कैसे लूंगी? बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको डॉक्टर ही डायरेक्ट कर देगा कि क्या करना है। आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछे कि क्या हेल्प अवेलेबल है। मैं तकरीबन गुज़िश्ता 8.5 साल से ये काम कर रही हूँ, और मुझे जब मेरा व्हेन आई वाज हायर्ड एट हार्ट हाउस हॉस्पिस इन 2013, लाइक आई वाज सेइंग, कि तो उस वक्त इनको ये था कि हमारी जो कम्युनिटी है साउथ एशियन, वो हॉस्पिस पैलिएटिव केयर की हेल्प लेती ही नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि ये भी अवेलेबल है। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं डिफरेंट जगहों पर गई, अपना हमने बूथ सेटअप करते हैं, जैसे नॉर्मली हम प्रमोशन करते हैं और जो भी है, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि हॉस्पिस क्या है। इवन प्रोनाउंसिंग द वर्ड हॉस्पिस वाज हार्ड। कोई कहता था हॉस्पाइस है, कोई कहता था हॉस्पिक है, कोई कहता था आप लोग लॉन्ग टर्म केयर हो, कोई कहता था आप लोग हॉस्पिटल हो, आप लोग करते क्या हो। तो वो एक पूरा ट्रांजिशन, और सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी नहीं, मुझे याद है कि मैं एक जगह हमने बूथ लगाया, और इट वाज लाइक मेन स्ट्रीम, सब कैनेडियंस और जो भी मिक्स पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर, एंड इट्स ब्यूटीफुल, जस्ट सच अ डाइवर्स पॉपुलेशन। लोग मेरे बूथ के करीब आते थे और कहते थे, डेथ एंड डाइंग, ओ वी आर नॉट डाइंग, और वो चले जाते थे। तो मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात है कि, और हम सब के लिए, कि जब हम पैदा हुए, बर्थ हुई है, बॉर्न हुए, तो डेथ जो है वो इनएविटेबल है। तो मैं कोई इसमें कोई डरने या उसकी बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बास जगह और बहुत सारी कम्युनिटीज में टैबू है ना, बात नहीं करते। अगर डेथ एंड डाइंग की बात करो तो लोग बोलते हैं इस बारे में बात नहीं करो वरना शायद मर ही ना जाए, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो ट्रांजिशन 8-8.5 साल में जो मैंने देखा है, कि हमने इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन सेशंस की, और ड्यूरिंग दैट साउथ एशियन प्रोजेक्ट, आई वेंट ऑन द रेडियो, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माय पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली पीसीएचएस एंड बलदेव मुट्टा, एंड हमने कोलैबोरेट करके काम किया, रेडियो पे शोज किए, साउथ एशियन मीडिया ने हमारी बहुत हेल्प की। अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो हम ये सारा जो इंफॉर्मेशन थी अपनी कम्युनिटी को पहुंचा सके। तो इस 8-8.5 साल में, जैसे मैं कह रही हूँ, कि एक फर्क देखा कि अब लोग हमें कॉल करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारा केस लोड बढ़ा, हमारे पास आते हैं और जानना चाहते हैं कि जी एंड ऑफ लाइफ की केयर क्या है। अब अगर अगेन सिंपल लैंग्वेज में, किसी के घर में किसी भी लव्ड वन को ये हो गया, आपने क्या किया कि आप हमें कोई भी कॉल कर सकता है। ठीक है, कोई भी कॉल कर सकता है, मरीज की परमिशन के साथ, कंसेंट के साथ।
आपने कॉल कर लिया, हमारा जो नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लिया, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इनटेक वाले ने इन्फॉर्मेशन ले ली और फिर आपको कुछ घंटों में 24 या थोड़े से ज्यादा घंटों में कोई आपको कॉल कर लेगा। और कॉल करने के बाद वो आप जहां पर भी होंगे, यानी मरीज जहां पर भी होगा, अब ऐसा मरीज घर में भी हो सकता है, ऐसा मरीज लॉन्ग टर्म केयर में भी हो सकता है, ऐसा मरीज हॉस्पिटल में भी हो सकता है। तो जहां पर ये मरीज मौजूद होगा वहां पर हमारे जो काउंसलर्स हैं वो जाकर उसका एक, इसको हम प्लान बोलते हैं कि उसकी नीड्स क्या है, करना क्या है। एक चीज और याद रखिएगा कि पैलिएटिव केयर में इट्स नॉट लाइक वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल जिसको बोलते हैं ना, हर फैमिली यूनिक होती है, हर मरीज की बीमारी यूनिक, उसकी नीड्स यूनिक, उसकी विशेस यूनिक, उसके फैमिली डायनामिक्स यूनिक। तो हर फैमिली की जो नीड होती है, कहीं पर घर में छोटे बच्चे होते हैं शामिल, ठीक है, उनकी तो फिर उस फैमिली की नीड डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से हमारे जो काउंसलर्स हैं वो एक उनका प्लान बनाते हैं। एक क्वेश्चन जो और आता है, जो एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि जी अगर हम हॉस्पिटल से हेल्प ले रहे हैं या जी हमको सीसीएसी हेल्प कर रहा है, तो अगर हम हार्ट हाउस हॉस्पिस से हेल्प लेंगे तो क्या वो सारी हेल्प रुक जाएगी? तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, आपको वो सारी हेल्प मिलती रहेगी। एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा मरीज जब तक वो जिंदा है उसकी केयर होती रहेगी, उसका ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं होता जब तक वो खुद ना चाहे, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट चलता रहता है, हॉस्पिस इज ऑल अबाउट केयर, है ना। तो उसकी केयर चलती रहती है, और आप हॉस्पिटल से हेल्प ले रहे हैं, सीसीएसी से ले रहे हैं, अगर आप हार्ट हाउस हॉस्पिस से भी लेते हैं तो आपकी कोई डुप्लीकेशन नहीं है और कोई आपकी सर्विस रुकती नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, इसको बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। लैंग्वेज का बैरियर आता है हमारी कम्युनिटी को, हमारे स्टाफ में अब लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, मैं खुद उर्दू हिंदी बोल सकती हूँ। उर्दू इज माय फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी जो है थैंक्स अगेन टू बॉलीवुड मूवीज जिसने मुझे इतनी सारी हिंदी सिखा दी है। तो हेल्प अवेलेबल है। हमारे जो ब्रोशर्स हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैं पहले यहाँ पर आई 2013 में, इट वाज ओनली इन इंग्लिश एंड माय थिंग वाज कि इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड। दो चीजें मैंने कही थी कि एक तो ब्रोशर्स और इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट कराइए ताकि हमारी कम्युनिटी समझ सके, और दूसरा ही कि जो इन्फॉर्मेशन सेशंस मैं कर रही हूँ या मीडिया पे जा रही हूँ तो मैं उर्दू, हिंदी और पंजाबी जितनी भी मुझे आती है उसको करके हम ये मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाएं, और उससे हमें बड़ा फर्क पड़ा। तो जो पहला प्रोजेक्ट हमने किया इनके साथ, उसमें मैंने जो ब्रोशर था उसको उर्दू, हिंदी, पंजाबी और तमिल 4 लैंग्वेजेस में हमने इनको ट्रांसलेट किया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि वो भी सारी हमने ट्रांसलेट की। इस वक्त जो फिर मैंने एक सेकंड प्रोजेक्ट इनके साथ किया, और अब मैं इस शेयर प्रोग्राम पे हूँ, जो सेकंड प्रोजेक्ट किया उसके बाद हमने कहा कि हमें और भी लैंग्वेजेस की जरूरत है। तो हार्ट हाउस हॉस्पिस का ब्रोशर इस वक्त 8 लैंग्वेजेस में है, विच इंक्लूड्स इंग्लिश ऑफ कोर्स, राइट। तो उर्दू में है, पंजाबी में है, अरबिक में है, मैंडरिन है, पोलिश, फ्रेंच। तो ये डाइवर्सिटी हमने इन सब में किया, और फिर कोशिश करते हैं कि हम जितनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं कि हम जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने स्टाफ को भी एजुकेट करते हैं। अभी करंटली लास्ट ईयर भी मैंने एक सीरीज की एंड ऑफ लाइफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, के सर्विस प्रोवाइडर्स को पता चले कि कोई भी किसी डाइवर्स कम्युनिटी से आता है तो उसके एंड ऑफ लाइफ रिचुअल्स क्या होते हैं, ताकि कोई गलतियां ना करे, है ना। बहुत सारी गलतियां जो ये बहुत सारी होती है, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्विस प्रोवाइडर्स को कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर हॉस्पिटल का मैं आपको वाकया सुनाऊं कि वहां पर एक हमारे अंकल थे, पंजाबी अंकल सरदार, और उनकी उनकी बियर्ड थी, एंड इट्स अ सीक्रेट थिंग, राइट। और नर्सेस को पता नहीं था। तो हुआ ये कि जब वो पैलिएटिव थे और उसने उनको हेल्प करने के लिए, बिकॉज इट वाज लैक ऑफ अवेयरनेस, उनकी शेव कर दी। तो जब उनकी फैमिली आई तो वो लोग रो रहे थे कि आपने तो इनको डेथ से पहले ही मार दिया। तो ये जो चीज है ना, ये कल्चरल अवेयरनेस, ये डाइवर्सिटी के बारे में मालूमात, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा पीस है जिसके ऊपर हम लोग बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी मैं जो रिसेंटली एक सीरीज कर रही हूँ, इट्स अगेन लास्ट ईयर मैंने एंड ऑफ लाइफ पे किया, इस दफा जो मैं कर रही हूँ मैं पूरा कल्चरल प्रैक्टिसेस है के ऊपर, क्योंकि हमें लगता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स को समझना है कि जी बर्थ की सेलिब्रेशंस क्या होती है हमारी कम्युनिटी में, नॉट ओनली साउथ एशियन। आई एम डूइंग जूइश, आई एम डूइंग मुस्लिम, आई एम डूइंग जैनिज्म, आई एम डूइंग ज़ोरास्ट्रियन। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म क्या चीज है या पारसीज क्या। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एंड, जिसको हम कहते हैं ना कि जो कस्टमर या क्लाइंट जो मरीज है उसकी और उसकी फैमिली की हेल्प हो सके। हमारी सर्विसेज जो है, लोग पूछते हैं हम क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जी जब मरीज बीमार होता है तो उसके घर पे या जहां पर भी वो होता है वहां जाते हैं। साइको सोशल सपोर्ट,
काउंसलर जाके उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, जिनको 30-35 आवर्स की बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। वो घरों में या मरीज जहाँ मौजूद हो जाते हैं, उनका काम ये होता है कि वो भी उनकी काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। वो केयर गिवर को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि जब किसी घर में ऐसा मरीज होता है तो वहां पर जो केयर गिवर्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि केयर गिविंग इज वेरी रिवॉर्डिंग ना। किसी की देखभाल करना बहुत अच्छा काम है, बहुत उनका काम है, लेकिन हमें ये समझना है कि केयर गिवर भी एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं जब यहाँ पर मैंने सेकंड वाला प्रोजेक्ट किया, अगेन इट वाज अ साउथ एशियन प्रोजेक्ट, तो मेरा जो जो अप्रोच थी वो ये थी कि हम केयर गिवर्स के लिए क्या करते हैं। क्योंकि नोइंग माय कम्युनिटी, मुझे पता था कि जी हमारे अगर कोई फॉर एग्जांपल बुजुर्ग बीमार है तो उसके बेटा बेटी, और हमारे कल्चर में बहू इज लाइक अ ह्यूज पीस है ना, इतने ड्रामा में भी दिखाते हैं कि जी बहू का कितना बड़ा पार्ट है, राइट। तो वो जो है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको क्या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम में से मेजोरिटी इमिग्रेंट्स हैं, फैमिलीज हमारी पीछे हैं, घर में छोटे बच्चे हैं, औरतें भी यहाँ पे जॉब कर रही हैं, ठीक है। हम इतने आराम से यहाँ कोई आपको मेड या सर्वेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो केयर गिवर का जो पीस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमने फिर सपोर्ट ग्रुप्स रन किए। मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया उसमें मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जी हमें साउथ एशियन केयर गिवर सपोर्ट ग्रुप चाहिए, हमको साउथ एशियन ग्रीफ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक हमारी सर्विस ये भी है कि जब डेथ हो जाती है तो हमारी सर्विस रुकती नहीं। हम जो केयर गिवर है, अब उसका देखो स्टेटस चेंज हो गया ना, वो अब बेरीव्ड इंडिविजुअल है, वो सोग में है, तो उनको हम ग्रीफ की सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास वो काउंसलर्स भी मौजूद हैं। और एक अच्छी बात ये कि हम जो ग्रीफ की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, 1-on-1 और सपोर्ट ग्रुप और ये सब, बच्चों के लिए ग्रुप हमारे पास है। वो प्रोग्राम हमारा कहलाता है हग, हेल्प अस अंडरस्टैंड ग्रीफ, HUUG, ठीक है। तो 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं, तो हमारी जो प्ले थेरेपिस्ट काउंसलर्स हैं, वो स्कूल्स के साथ भी काम करती हैं, क्योंकि बच्चों को भी हेल्प चाहिए और हमें इसको बिल्कुल भी नहीं निग्लेक्ट करना चाहिए। मुझे याद है, बिकॉज मैं आउटरीच में हूँ तो मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं मेरे वर्क सेल के ऊपर। एक कॉल मुझे आई ब्रैम्पटन से, उसमें एक खातून ने, एक औरत ने कॉल की कि उनके जो बहनोई थे, जीजा जी, राइट, वो ट्रक का उनका क्रैश हो गया और डेथ हो गई, सडन डेथ। और हम ऐसे क्लाइंट्स के भी, हमारे बेरीमेंट के ग्रुप सबके लिए ओपन है, ठीक है, सिर्फ हमारे ऐसे नहीं कि पैलिएटिव की फैमिलीज के लिए। तो उन्होंने कहा घर में 3 बच्चे हैं और मेरी बहन बिल्कुल डेवास्टेटेड, व्हिच वाज ऑब्वियसली ऐसे, तो एक नेचुरल वो था। उन्होंने कहा जो बच्चे छोटे हैं उसमें जो बच्चों की एज थी 9 साल, 7 साल और 4 साल। तो बहुत ही बड़ा टचिंग और बड़ा ऐसा ये वाकया है। तो उन्होंने कहा हम जब भी 9 साल की बच्ची को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पापा की डेथ होगी, तो वो कानों पे हाथ रख लेती, उसको नहीं सुनना है। लेकिन देखिए, अगर हम बच्चों को हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चे, फिर होता है ना जनरलाइज करना, वो अंदर अंदर बच्चे जिसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर बन जाएंगे, उनके ग्रेड्स लो हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ये सारे जो ना ये सब चीजें उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो सॉरी, माय वीडियो, आई थिंक, इज इट ओके नाउ तेजस? Yeah, it's fine now. Yeah, yeah. ओके, सॉरी। तो इंटरनेट क्या कर सकते हैं, सही है। तो वो जो है ना, तो ये सब चीजें बच्चों को भी हेल्प चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी नहीं चुप कराना है। हमारे बस दफा कम्युनिटी में क्या करते हैं, कुछ भी घर में बात हो रही है, बच्चों ने कोई सवाल पूछा, उसको बोला नहीं आप जाके खेलो, तो दिस इज नॉट राइट। बच्चों को एक्सप्रेस करने का प्लीज मौका दें। तो क्योंकि उसी में फिर आगे आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मेंटल हेल्थ राइट नाउ, लेकिन अगर ग्रीविंग जो है, घर में किसी की डेथ होगी और बच्चा भी ग्रीव कर रहा है और हमने उसको हेल्प नहीं की या उसके सवाल के जवाब नहीं दिए, तो फिर ग्रीफ वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ बन जाता है। फिर वो बड़ों के लिए भी है, फिर वो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, तो वो पूरी एक चेंज शुरू हो जाती है। तो हमको इसको शुरू में ही रोकना है। तो प्लीज, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है तो गेट प्रोफेशनल हेल्प, कॉल अस, और ये सारी हेल्प अवेलेबल है, ठीक है। फिर एक हमारी चीज है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, वो हमारे क्लाइंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप में से बहुत लोगों ने रेकी, अरोमा थेरेपी के बारे में सुना होगा। ये नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज हैं कि ऐसे मरीज को आखिर वक्त में कैसे रिलैक्स उसकी माइंड और बॉडी को करना है, या उसके केयर गिवर्स को, और डेथ के बाद जो जो उनकी फैमिली सोग में उनको। तो ये सारा हमारे पास काउंसलर्स और ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं अलग से इसके लिए, और ये सब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है। तो ये सारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। एक चीज जो मैं क्विकली टच अपॉन करूंगी, कि हम अब बात कर रहे हैं बहुत सारी एडवांस केयर प्लानिंग, ठीक है, कि क्योंकि बहुत दफा आप सोचो, इतने सालों में मैंने कितना कुछ देखा, और ये लोग तो 1985 से काम कर रहे हैं, कि अगर किसी को अचानक कोई ऐसा डायग्नोसिस हो गया, अब पूरी फैमिली पैनिक कर जाती है, विच इज वेरी नॉर्मल, है ना। कैंसर हो गया, अब कैसे करेंगे, अब डेड बॉडी को इंडिया पाकिस्तान लेकर जाना है, अगर डेथ हो गई तो, ठीक है। छोटे बच्चे हैं घर में, जॉब लॉस हो रहा है, हम जा नहीं रहे, सब डेवस्टेटेड हो जाते हैं। बिलोंगिंग्स का क्या करना है, उनको इलाज क्या कराना है।
तो अगेन हमें ये समझना है कि इसके लिए एडवांस केयर प्लानिंग बहुत जरूरी है। एडवांस केयर प्लानिंग ये है कि आप पहले से अपनी फैमिली से घर में बात करिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ना मेक योर विशेस नोन। और बात करने से अगेन ये नहीं होता, ये कोई टैबू नहीं है कि अगर मैं अपनी डेथ के बारे में बात करूं घर में तो मैं कल गॉड फॉरबिड मर ही जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। मुझे जब मरना है तभी मरना है ना। तो आप अपने से पहले अपनी फैमिली से बात करिए, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि एक चीज ये होती है कि अगर कोई पैलिएटिव होता है और उसे कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसका कंसेंट चाहिए होता है। तो डॉक्टर्स कैसे उसको ट्रीटमेंट दें, और उसमें खास तौर से उस वक्त जब मरीज मेंटली केपेबल नहीं होता। याद रखिए, क्योंकि बाज दफा तो मरीज होश में है ना, चल फिर रहा है, या होश में कि वो अपने इलाज के बारे में बात कर सके और कह सके कि मुझे ये वाला ट्रीटमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। बाज लोगों को इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं चाहिए, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कीमो नहीं चाहिए या चाहिए। तो वो उस वक्त होश में वो बता रहा है। अगर मरीज और कल मुझे कुछ हो जाए और मैं मेंटली केपेबल ना रहूं, तो फिर कौन फैसला करेगा। तो इसीलिए एडवांस केयर प्लानिंग, ये सारी बात प्लीज अपने घरों में करिए और अपनी फैमिली को बताइए कि ये चीजें डिस्कस करना जरूरी है। अब अगर मेंटली केपेबल नहीं है मरीज, तो फिर कौन फैसला करेगा? एसडीएम। एसडीएम कौन है? सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर, ठीक है। वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है आपका, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर, या किसी को आपने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। याद रखिए, जब मैं कहूँ पावर ऑफ अटर्नी, मैं किसी वकील की बात नहीं कर रही। हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ अटर्नी की, पैसे की, जायदाद की, विच इज फाइन, वो भी करना चाहिए। एक पावर ऑफ अटर्नी होती है आपकी पर्सनल केयर की। क्या मैंने कभी ये सोचा, या आप लोगों ने सोचा कि कल को अगर मैं मेंटली केपेबल ना रहूं, बात करने के काबिल ना रहूं, कोई बीमारी हो जाए, कोई गॉड फॉरबिड कोई हादसा हो जाए, तो फैसले कौन करेगा? ठीक है, तो हो सकता है कि मैं नहीं चाहती कि जी मेरा स्पाउस फैसले करे, वो बहुत इमोशनली टच्ड होगा, शायद वो उस वक्त इतना डिस्टर्ब होकर फैसले ना ले सके। तो क्या मेरी कोई दोस्त है जो इतनी वाइज है जो डिसीजन ले सके? क्या मेरी कोई बच्चे हैं बड़े जो डिसीजन ले सके? एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, जो एसडीएम होता है, सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर, उसका 18 साल का होना जरूरी नहीं है, उसकी एज 16 साल है। 16 या उससे ऊपर जो होता है, फिर वो मेंटली केपेबल हो, वो ठीक हो के फैसले ले सके, उसको आपकी विशेस पता हो कि अगर आप बीमार हो गए और आप मेंटली केपेबल नहीं है तो आप क्या चाहते थे। सो रिमेंबर, इट्स अबाउट यू, ठीक है ना। मरीज की ख्वाहिश है, लेकिन सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर के साथ डिस्कस की गई है, तो वो बता सकता है डॉक्टर को आगे। तो ये सब चीजें, और सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर को अवेलेबल भी होना चाहिए, या तो वो वहां पर मौजूद हो इन पर्सन, या फिर वो फोन पे हो, ईमेल पे, किसी भी तरीके से वो डॉक्टर को बता सके कि जी मरीज को ये तरीका इलाज चाहिए या ये नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं इंफॉर्मेशन सेशंस करती हूँ कम्युनिटी में, अगेन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, राइट। And there's another group that I run that's called Circle of Life. इसका नाम पहले डेथ कैफे था, फिर डेथ कैफे ब्रांड हो गया। और जब मैंने डेथ कैफे किए तो मैंने अपनी साउथ एशियन, आई कॉल देम आंटीज, राइट, अगेन विद पीसीएचएस के साथ की, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मैंने कहा जी डेथ कैफे हम कंटिन्यू करें, कैसा नाम है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो जो ना कोई इतना अच्छा नाम नहीं है, बड़ा स्कैरी सा नाम है। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम दैट फोकस ग्रुप, एंड इट वाज अमेजिंग, एंड इट्स लवली टू वर्क विद सीनियर्स अगेन, राइट। कितना विजडम वो हमको सिखा देते हैं। उन्होंने कहा इसका नाम रख देते हैं जीवन का चक्कर, या जिंदगी का चक्कर, या फिर सर्कल ऑफ लाइफ। एंड दैट वाज टेकन वेरी वेल। मैंने कुछ काम इंडिजिनस पॉपुलेशन के साथ जब किया तो सर्कल ऑफ लाइफ उनको भी बड़ा पसंद आया। तो वो ग्रुप मैं करती हूँ। वो ग्रुप एक ओपन फोरम होता है जिसमें हम एडवांस केयर प्लानिंग और इस बारे में बात करते हैं। तो वो इंटरैक्टिव होता है, उसमें हम क्वेश्चंस देते हैं लोगों को, वो जवाब देते हैं। उसमें होता है कि जी आप कल अगर आपको बीमार होगा तो आप क्या करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े फन भी होता है कि जी अगर आप मरने वाले होंगे तो आप आखिरी खाना कौन सा खाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं जी मेरी तो भूख ही मर जाएगी, कुछ कहते हैं जी मैंने बिरयानी खाने, कुछ तो बड़े वो कहते हैं जी मैं तो नहारी पाए भी खाने, कुछ कहते हैं मुझे खाली दाल खिला दो फैमिली के साथ। तो अगेन वो थॉट प्रोवोकिंग है, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है कि आपको क्या करना है। और ये बहुत जरूरी है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम एडवांस केयर प्लानिंग करें, मेरी बिलोंगिंग्स का क्या होगा। इससे बाद में ये आपस में झगड़े, कंफ्यूजन और ये सब भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारी कम्युनिटी को जरूर जरूर सोचना चाहिए। एक क्वेश्चन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी अगर आपके पास जिंदा रहने के लिए 3 महीने रह गए तो आप क्या करेंगे पहले महीने में, दूसरे, तीसरे, लाइक अ बकेट लिस्ट। तो उसमें आते हैं डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। तो अभी मैंने कुछ महीने पहले एक वुमेन्स ग्रुप के साथ किया, तो पहली दफा 8 साल में इतना इंटरेस्टिंग रिस्पांस आया कि एक उसमें लेडी थी, उन्होंने कहा कि पहले महीने में तो मैं जी भर के क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे कर्जा ले लूंगी पैसे। ओके, एंड दिस इज अ पैलिएटिव इंडिविजुअल। दूसरे महीने में आप क्या करेंगी? दूसरे में जी मैं खाना खाऊंगी बहुत सारा
क्रूज पर चली जाऊंगी, चैरिटी भी दूंगी। हमने कहा ठीक है, अब मरने वाली हूँ तो तीसरे महीने में क्या करेंगी? तो कह लेंगे तीसरे महीने में तो मैं पुलिस से भाग रही होंगी क्योंकि मैंने इतना बड़ा फ्रॉड किया होगा। तो लाइक लोगों की डेथ एंड डाइंग सिर्फ रोने का और उसका आई नो कि डेथ इट्स अ ह्यूज लॉस होता है लाइफ में, लेकिन उसको हमें एक्सेप्ट करना है ना। आई एम नॉट आस्किंग कि हम सेलिब्रेट करें ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बेवकूफी की बात होगी लोगों से कहना, लेकिन क्योंकि लॉस होता है और ये जो कुछ भी है, पर उसको एक्सेप्ट करना है हमने, उसके बारे में बात करनी है। फिर ये होता है कि जी बेरियल आपने यहाँ पे बेरी होना है, या जो भी क्रिमेशन है, या आपको पाकिस्तान इंडिया जाके बांग्लादेश जाके करना है, वो सब चीजें भी अपनी विशेष बताना बहुत जरूरी है। बहुत दफा हमारे वॉलंटियर्स और काउंसलर्स जो है वो क्यों हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब किसी की डेथ हो रही है तो वो अपनी फैमिली से बातें शेयर नहीं करता, इसलिए नहीं कि उन पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए कि फैमिली इमोशनली अटैच्ड होती है। तो उनसे कहेंगे जी मैं मरने वाला हूँ, ये करो, तो वो उनको तकलीफ हो रही होती है ज्यादा। हमारे काउंसलर्स वॉलंटियर्स ऑब्वियसली वो भी टच होते हैं, पर वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तो क्लाइंट बात दफा उनसे बहुत सारी दिल की बातें करता है क्योंकि वो उनके साथ इमोशनली अटैच नहीं होता। सो दिस इज इन अ नटशेल व्हाट वी डू, और ये सारी हमारी सर्विसेज हैं। अगेन मैं आप लोगों को जरूर एनकरेज करूंगी कि अगर किसी के घर में ऐसी कोई चीज है या पड़ोस में, तो इसके बारे में बताइए और उनसे कहिए कि इस बारे में जरूर जरूर हेल्प लें। इसमें कोई शर्माने की, झिझकने की बात नहीं है। और एक चीज जो मैं कहती हूँ, नोइंग माई कम्युनिटी, के जजमेंटल नहीं होना है ना। अगर कल मेरे घर में कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे पड़ोस में कोई है तो वो जजमेंटल ना हो कि देखो ये अपने बुजुर्ग की खिदमत नहीं कर सकी, इनको हेल्प लेनी पड़ी। ये सिस्टम से हेल्प है क्योंकि वी आर इन अ डिफरेंट सिस्टम ना। हमारे यहाँ पीछे इंडिया पाकिस्तान में तो कोई डेथ हो गई, बीमार हो गया तो पड़ोसी जमा हो गए, एक्सटेंडेड फैमिली है। यहाँ पे बहुत लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सो गेट हेल्प फ्रॉम द सिस्टम। और ऑन द फ्लिप साइड, अगर मैं किसी की पड़ोसी हूँ या किसी की रिश्तेदार हूँ और कोई हेल्प ले रहा है सिस्टम से, लॉन्ग टर्म केयर से या हॉस्पिस से, तो मुझे भी जजमेंटल नहीं होना। मुझे ये नहीं कहना कि ये देखो क्या कर रहा है। व्हाट आई कैन डू एज अ नेबर और एज अ फ्रेंड, कि मैं हेल्प ऑफर करूं। तो प्लीज हेल्प ऑफर करें एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसी तरीके से बेटर सोसाइटी, बेटर कम्युनिटी बन सकती है, और द वर्ल्ड कैन बिकम अ बेटर प्लेस। दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you so very much, Asma ji. It was definitely a very informative session, and good to know about this from a South Asian perspective. Like आपने जैसे कहा कि community में stigma तो होता है, like, and I guess it's not very surprising कि आपको काफी time लगा to conduct outreach into the community, कि ये बात लोगों को समझाए कि चीज क्या है end of life और palliative care है क्या, and like how it impacts all of them. So it's definitely a good thing that you're doing. Vipulji, do you have any questions? Yep, sure. So I have got 3 brief questions, and then Tejas, you can also ask, in between. Yeah. So Asma ji, I have a few questions आपके लिए. पहला तो ये है कि I will also ask you in Hindi since your speech was mostly in Hindi, Urdu. So see, one issue that I have seen firsthand is when it comes to the seniors in the South Asian community. I'm not saying all of them, but there a large number of them. ऐसे लोग होते हैं जिनको घर छोड़ के बाहर नहीं जाना, चाहे फिजिकल कंडीशन उनकी जो भी हो, राइट? दे एक्सपेक्ट कि नहीं मैंने घर में ही रहना है. They are very hesitant to go to hospital, very hesitant to go to long-term care homes, very hesitant to even invite personal support workers in their own home, right? फिर वो बोलेगा अच्छा तो साथ में पूरा दिन बैठा रहेगा, मेरी तो प्राइवेसी नहीं है कुछ. ऑल्दो वो प्राइवेसी का कुछ कर नहीं सकते, उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद देयर प्राइवेसी, बट फिर भी वो कोई बाहर का आदमी मेरे घर में बैठा है, राइट? आई मीन दैट्स हाउ देयर थिंकिंग इज. तो हाउ डू यू कन्विंस देम कि भाई आपके बच्चे अभी आपका ध्यान नहीं रख सकते, मतलब दे आर वेरी बिजी इन देयर ओन लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन वर्क लाइफ बैलेंस. तो उनके ऊपर भी इतना ज्यादा इमोशनल अत्याचार हो जाता है. फिर दे फील दैट दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, although they are going beyond their means, trying to find a personal support worker or long-term care worker to take care of their parents while they are going out earning their living. तो कैसे, मतलब how do you juggle this? How do you convince the parents, and how do you look after the kids also who are looking after their parents? तो सबके लिए मतलब बड़ा स्ट्रेसफुल होता है ना. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा विपुल जी. देखिए इसमें जो 2 चीजें, कोई चीज राइट और रॉन्ग नहीं है. होता यह कि जब, और पैलिएटिव के पर्सपेक्टिव से जैसे हम बात करें लाइफ में,
ज्यादातर हम ये एनकरेज करते हैं कि जो मरीज है उसकी विशेस को देखा जाए, क्योंकि इट्स अबाउट द मरीज, राइट, इट्स अबाउट द पेशेंट एंड प्लस द केयर गिवर ऑफ कोर्स। मरीज को क्या करना है, आप यकीन करें कि जो स्टैट्स कनाडा कहती है उसमें मेरे ख्याल में 70-75 से ऊपर परसेंटेज से ऊपर लोग कहते हैं हमें घर में मरना है, हमको हॉस्पिटल में नहीं मरना। तो ये उनकी विश है उनके बारे में, तो फिर हमको घर पे ही रखना है, ठीक है। अब ये होता है कि जी बाहर से PSW ना आए या फिर कोई काउंसलर ना आए, तो अब देखो ये उनकी प्राइवेसी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। हाँ ये होता है कि काउंसलर, और अगेन अगर काउंसलर लैंग्वेज बोलता और कल्चर समझता हो तो वो उस पर्सपेक्टिव में उनको समझाए कि जी इससे आपको मुश्किल होगी, है ना। अगर PSW नहीं आता और आपके बच्चे काम पर हैं, और काम करना भी उनका जरूरी है, और अगर आप आप साफ नहीं हुए, आपकी हाइजीन नहीं, तो आप और बीमार पड़ सकते हो। तो तरीका होता है समझाने का एक। दूसरी बात है कि उनको केयर गिवर का भी पर्सपेक्टिव समझाना है कि अब अगर आप बीमार हैं, जैसे मैंने अभी कहा हम एक डिफरेंट कंट्री में है, पड़ोसी से कोई आपके पास आके मोस्ट लाइकली नहीं बैठ सकता, सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपको केयर गिवर का पर्सपेक्टिव मरीज को समझाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्क्स आउट, वो समझते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये उनके लिए ही है। और अच्छा उसमें एक चीज और ही होती है कि हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में जेंडर का भी एक मसला है ना, कि और वो व्हिच इज फेयर इनफ कि अगर कोई औरत बीमार है और वो सीनियर है तो वो किसी मेल PSW के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगी, यू नो व्हाट आई मीन। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसी अगर कोई कोई बुजुर्ग होंगे, मेल सीनियर होंगे, तो वो उनको नहीं कंफर्टेबल होंगे कि कोई मेन स्ट्रीम की फीमेल आकर, और ये हम अपने एक्सपीरियंसेस में देखते हैं, और मैं आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी सीनियर्स ग्रुप, कि वो कहते हैं हम कंफर्टेबल नहीं होंगे कोई औरत SPSW आके मुझे हेल्प करे। तो उसमें फिर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली बैरियर आ जाता है, पर कोशिश की जाती है कि मैच किया जाए बिल्कुल, अगर जो भी मरीज की ख्वाहिश होती है। अगेन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं हार्ट हाउस हॉस्पिस के, हम जब उनको घरों में भेजते हैं, उनका एक प्री पोस्ट इंटरव्यू होता है जब वॉलंटियर्स ट्रेन हो जाते हैं, तो उसमें उनके पास चॉइस होती है, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी में भी आउटरीच वॉलंटियर्स ट्रेन किए हैं, तो आई वाज द ट्रेनर। मैंने साउथ एशियन प्रोजेक्ट के लिए होम हेल्थ वॉलंटियर्स भी ट्रेन किए, तो उनको हम चॉइस देते हैं। आप साउथ एशियन वॉलंटियर हैं, आप एक औरत हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि आप किसी ऐसे घर में जाने पे कंफर्टेबल होंगी जहां पर कोई मर्द मरीज मौजूद हो, या जहां शराब का इस्तेमाल हो, ठीक है, या वहां पर बहुत सारी औरतें पेट्स होते हैं घरों में, उनसे डरती हैं कि जी कहाँ पे कुत्ता पला हुआ। तो हम ये देखते हैं कि नीड क्या है मरीज की, और वॉलंटियर उसके हिसाब से वॉलंटियर मैच होता है। अब PSWs पे एंड अनफॉर्चुनेटली इस पर प्रेशर है हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो भी कोविड और वो सारी जो चीजें हैं, तो उसमें जो सिचुएशन आप बता रहे हैं उसमें बुजुर्ग को समझाने की जरूरत है उनके लिए क्या अच्छा है, और उनके केयर गिवर का पर्सपेक्टिव कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, वो आपके पास चाहने के बावजूद नहीं रुक सकते। बाज दफा ये होता है कि बाज बुजुर्ग उनको घर में रहना है विच इज फाइन, लेकिन बाज दफा किसी को ऑक्सीजन चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, तो उनको फिर आपने मूव करना है हॉस्पिस के अंदर। एक चीज जो मैं मेंशन करना शायद जेन में नहीं रहा कि हॉस्पिस कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम जाते हैं जहां मरीज हो। एक सर्विस होती है हॉस्पिस रेजिडेंस, जहां पर जिंदगी के आखिरी हफ्तों में मरीज को रख सकते हैं। 3 से 12 हफ्ते रह गए, डॉक्टर ने कहा अब ये बस 3 से 12 हफ्ते का मेहमान है, तो हम रेजिडेंस पे रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मिसिसागा ब्रैम्पटन में रेजिडेंस नहीं है। डॉर्थी ले जो इटोबिको में वो रेजिडेंस है, फिर आपके पास बर्लिंगटन में रेजिडेंस है, एक बेथल हॉस्पिस है वो रेजिडेंस है इंगलवुड में ब्रैम्पटन से आगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हार्ट हाउस हॉस्पिस को मिनिस्ट्री ने इस चीज को समझा है, और एरन मिल्स के ऊपर हमें लैंड दे दिया गया है, 2210 स्पीकमैन ड्राइव उसका एड्रेस है, और वहां पर तेजी के साथ रेजिडेंस बन रहा है। तो वंस दैट वुड बी डन, हम एंटिसिपेट करें अगले 2 साल में वो बन जाएगा, 2-2.5 साल में, तो वहां पर हम आखिरी हफ्तों में वो 10 बेड की फैसिलिटी होगी, वहां पर ऐसे मरीजों को रखा जा सकेगा। तो अगेन कोई ऐसा बुजुर्ग है, उनको ये समझना है कि आखिर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, अब वो घर पे तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको रेजिडेंस में या उनको हॉस्पिटल में या कहीं मूव करना पड़ेगा। तो वो समझाने वाली बात है, और मुझे अंदाजा है कि इसके अंदर लैंग्वेज और कल्चर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो these are the tactics or these are the strategies that we use. Sure. Tejas, you want to ask the next question, and then I will ask the second one. Yeah, I'll just actually share an infographic जो हमारी student ने बनाया था, तो just to give put things in perspective, एक second. Sorry, my screen is freezing. हाँ, वो बार-बार freeze हो जाता है. No worries. It looks like yours. All this time it was fine. नहीं, your screen needs some care too. Short-term care.
Yeah. Vipul, why don't you go ahead? As soon as I get this. Yeah. ठीक है. सो अस्मा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी अभी तक आपने इंफॉर्मेशन दिया, जो भी हमने डिस्कस किया, इट हैज ऑल बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, फॉर एवर. थोड़ा सा धीरे धीरे उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट वो इश्यूज तो पहले से है. सो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, जो पिछले 18 महीने में व्हाट वी हैव ऑल गॉन थ्रू, and it has actually exposed the condition in our long term care homes, what the seniors go through. लोगों को क्या बहुत बड़ा रोजी पिक्चर था, कि कनाडा में, ओंटारियो में, when you look at the long term care home or a senior residence from outside, वो बड़ा होटल जैसा लगता है. You feel that, oh, see, they must be having so much fun inside. And then later on, सारे न्यूज रिपोर्ट एक के बाद एक क्या आए कि what kind of horrible situation they are living in. तो my question is कि जो पहले सिचुएशन थी before the pandemic and जो हमने देखा during the pandemic, because of that, do you see the situation improving in Ontario in terms of palliative care, critical illness, जो भी critical situation है, कोई फर्क on the ground है कि it is still just on paper? देखिए, आपने तो मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जो कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई वो रीजन ऑफ पील से जवाब देता. लेकिन मैं आपको बताऊं ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल जो हम देख रहे हैं कि उसमें फर्क है. देखिए, जब कोई पेंडेमिक की सिचुएशन होती है तो दुनिया में हर जगह ही पैनिक फैला और गलतियां भी हुई, और बाज गलतियां लैक ऑफ अवेयरनेस की या लैक ऑफ रिसर्च की वजह से भी हुई. हमें एक चीज ये भी समझना है कि लॉन्ग टर्म केयर या सीनियर्स होम में बुजुर्ग रहते हैं, और जो छोटे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, वीक होता है ना. तो वो जल्दी पकड़ते हैं किसी भी बीमारी या चीज को. तो एक रीजन ये भी था, और ये पूरी दुनिया में हुआ. हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग, मसला होता है विपुल जी कि हम ना खुद ही सोच लेते हैं कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान से आते हैं तो हम लोग, एंड सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, के हम समझते हैं कि जो वेस्ट है ना वो कोई जन्नत है, स्वर्ग है. ऐसा नहीं होता है ना. गलतियां हर जगह होती हैं, गड़बड़ें हर जगह होती हैं, हादसे हर जगह होते हैं. तो जब होते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि जी ये यहाँ कैसे हुआ. ये दुनिया भर में होता है. तो मेरा ख्याल में इसमें थोड़ा सा परसेप्शन भी है, बीइंग अ साउथ एशियन, हम सब का, कि हम थोड़ा सा अपना लेंस चेंज करें कि वेस्ट जन्नत नहीं है, स्वर्ग नहीं है, और ईस्ट जो है वो नर्क या जहन्नुम नहीं है ना. तो हमको ये सोचना है कि ये सब चीजें दुनिया भर में होती हैं. और लेकिन द सिचुएशन इज गेटिंग, आई थिंक आप लोग को मुझसे ज्यादा पता होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लोगों ने गलतियों से सीखा, और जब जिस तरह रिसर्च और आती गई और प्रोटोकॉल्स बढ़ते गए और जो कुछ भी, उससे थिंग्स आर गेटिंग बेटर. बट स्टिल सारी बात है कि हम लोगों को चीजें फॉलो करना है, हमें इनको समझना है, और वी हैव टू वर्क एज अ टीम, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर बहुत है. तो हमें वो चीजों को समझना है और अगेन बस साथ चलना है. दैट्स ऑल आई कैन से. लास्टली अ वेरी ब्रीफ पॉइंट, जो आपने बताया कि यू सेंड काउंसलर्स टू पीपल्स होम्स, राइट, उनका ग्रीफ काउंसलिंग के लिए या केयर के लिए जो भी. बट पिछले 1.5 साल में बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन्स, तो nobody was going anywhere, nobody was opening their door to anybody. तो how did you manage? That's again a very good question, विपुल जी. उसका सिर्फ एक जवाब होगा, Zoom. हम लोगों ने, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई वर्क हियर, जब पेंडेमिक फैला और ये चीजें हुई तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ हम लोगों ने अपनी सर्विसेज को चेंज किया. और ये इतनी तेजी के साथ हुआ है कि मैं आपको खुद, क्योंकि मैं पर्सनल पूरे इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, हर चीज हमने ऑनलाइन कर दी थी. तो हमारे ग्रुप्स भी रन कर रहे थे, यानी इवन मैंने इंफॉर्मेशन सेशन जूम, सर्कल ऑफ लाइफ जूम, हमारी जो ये जो ग्रीफ की सपोर्ट ग्रुप्स हैं जूम, वन ऑन वन जूम, सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया था. काउंसलर्स ऑब्वियसली एहतियात की वजह से भी घर में कोई नहीं जा रहा था. बाद में जब चीजें बेहतर हुई हैं, वैक्सीनेशन होनी शुरू हुई है, तो उसके बाद पूरा जो आपका ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, वो शील्ड और पूरा गाउन और वो सब पहनकर बहुत एहतियात के साथ जाना शुरू हुआ. आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जरूरत थी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए कि जो हमारे घर में नहीं आना. कुछ लोगों ने कहा हमें जरूरत है कि हमारे घर में कोई आए. कुछ लोगों को उस ह्यूमन टच की और किसी की जरूरत थी कि कोई उनके पास आए. तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमको गाइडलाइंस देती गई है, उस तरह हम करते गए. अभी भी हमारे ऑफिस में भी जो डे प्रोग्राम हमारा एक होता था वेडनेसडे का, जिसमें ऐसे मरीज या उनके केयर गिवर्स आते थे और फन और एक्टिविटी करते थे, वो इन पर्सन नहीं हो रहा.
इट्स ऑन जूम, उनके साथ काउंसलर्स और जो कोऑर्डिनेटर है वो बात कर रहे हैं और जो भी उनकी एक्टिविटीज है, लेकिन ऑब्वियसली और जूम के ऊपर बहुत सारी चीजें पॉसिबल है ना, कि मिलकर आप खाना पकाने की कोई तरकीब देख रहे हैं या आप निटिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो लाइक आई सेड, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन। हमारी मीटिंग्स, हमारे सपोर्ट ग्रुप, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम लोग जब ग्रीफ के सपोर्ट ग्रुप्स करते हैं तो उसमें हम लोग लोगों को 6 लोग होते हैं कभी यार, जिनके सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने अपने साउथ एशियन प्रोजेक्ट में आई पार्टनर्ड विद मल्टीपल फेथ ग्रुप्स। तो मैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, साउथ एशियन चर्चेज में, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग वर्क एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस कि कितना एक्सेप्टिंग है हर फेथ डेथ एंड डाइंग के लिए, एंड दैट वर्क वेरी वेल। तो उनके साथ भी हम क्लोजली जो है वो काम करते हैं। फिर एक चीज ये आई थी कि कुछ लोग सपोर्ट ग्रुप के लिए रेडी नहीं है, उनको कुछ झिझक है, शर्म है कि वो, हालांकि जरूरी नहीं होता कि आप सपोर्ट ग्रुप में शेयर करें। तो उनके लिए हमने ग्रीफ एजुकेशन सीरीज शुरू की है कि अगर आपको सिर्फ समझना है कि शोक क्या है और आप हैवी फील कर रहे हैं, तो आप वो एजुकेशन सीरीज को ज्वाइन कर लें। उसमें वो जो होती है कोऑर्डिनेटर, वो एक स्पीकर्स बुलाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो आपने कैसे उसको मैनेज करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ना जो यहाँ पर कनाडा में रह रहे हैं, डेथ्स पीछे हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान में, या 20 साल पहले किसी की डेथ हो गई, लेकिन आपको शोक का मौका नहीं मिला। तो वो जो चीज है उसके लिए भी ग्रीफ एजुकेशन सीरीज इज देयर। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू यू तेजस। Thank you. Before we go, just look into your camera. मैं एक screenshot ले लेता हूँ. Okay. You At the wanted count to of share 3. something, no? You wanted to share something? Yeah, करता हूँ. एक second. मैं screenshot लेता हूँ, then I'll share the graphic. Okay. So 1, 2, 3. Okay. Okay, I'll just share this infographic that was created by our student, Jasmeet. So I'll just go over this. So this is from a journal article on end-of-life care and the South Asian community in Ontario. So Jasmeet found out that in Ontario, South Asians were more likely to receive more ICU and hospital admissions than the general population. 29.7%, so 30%, almost 1/3 of South Asians had an ICU admission before receiving end-of-life care between 2004 and 2015, compared to 19.3% of the general population. And South Asians at 18.5% are more likely than people from the general population at 10% to die in the ICU. So this is 1 in 5 to 1 in 10. Utna difference ho gaya. And 26% of South Asians receive life support from mechanical ventilation when compared to 13.8% of the general population. So a quarter of South Asians versus just about 1/10 of the general population. So there is a greater tendency, borne out by numbers, that end-of-life care is actually more relevant and more important to the South Asian population. And this graphic was, this finding by Jasmeet was one of the reasons we decided to pursue this topic and present on this. Because जैसे आपने भी कहा आसमा जी, like this is a topic that is not discussed and should be talked about. Like the relevant है, and जितना बात करें उतना वो stigma breakdown हो जाता है, उतने easily conversation हो सकती है. And there are some things, like if it is an issue of changing your lifestyle to better health outcomes, वो तो हो सकता है, वो तो अपने हाथ में है. But end of life care or a terminal disease, वो तो ऊपर वाले पे है. So it is about how best can we adjust to this and how do we get to it. So I just wanted to share this graphic कि आसमा जी आपने जो कहा, like this is borne out by data, borne out by real numbers कि South Asian population को ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, and हम इस जितना बात करें, जितना इस चीज़ को टैकल कर ले जल्दी, it will be better for all of us. तो आसमा जी एक बात है कि how where do you see a sort of the next 10 years or say 20 years, where do you see this going? कि जैसे population age होती है, especially the South Asian population ages, are there enough supports coming up the pipeline in terms of funding and facilities? जैसे आपने कहा आपका hospice बन रहा है at Erin Mills, but are enough of them in the pipeline? And if not, like then what more would you like the community to see or do?
देखिए 10 साल में तो सिचुएशन बेहतर हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो आपने जो ज्योग्राफिक शो किया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त आप लोगों ने ये काम किया है। एक जो चीज होती है ना, अगर थोड़ा सा आप इसमें एक कहते हैं ना डेमोग्राफिकली ये कैप्चर करते हैं कि एज ब्रैकेट क्या है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि सीनियर्स हमारे ज्यादा जाते हैं आईसीयू वगैरह में। होता है कि जो एक परसेप्शन है साउथ एशियंस में पीछे बैक होम से, कि कुछ भी हो ना हॉस्पिटल फौरन जाओ, इमरजेंसी में तो ठीक हो जाओगे। आप समझ रहे हो, ये कनाडा एक डिफरेंट सिस्टम है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को और अवेयरनेस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं लोगों से कहती हूँ कि जी अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक पर्चे पे लिख लें कि आपको उनसे क्या बात करनी है। आधी से ज्यादा पब्लिक जब फैमिली डॉक्टर के पास जाती है तो भूल जाती है कि क्या बीमारियां थी। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, हमें सिस्टम को समझाना है अपने बुजुर्गों को खास तौर से। और फिर दूसरी बात है कि एडवांस केयर प्लानिंग नहीं है, बात नहीं करते, उसको अंडर द रग दबा देते हैं। अब तबियत खराब हुई एकदम से इमरजेंसी चले जाओ, तो एकदम से आईसीयू चले जाओ, एकदम से हॉस्पिटल। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा फर्क है। मैं चूंकि डाइवर्सिटी पे काम करती हूँ, और मैं आई वाज पार्ट ऑफ अ मीटिंग इन द मॉर्निंग, ब्रैम्पटन एटोबिको ओंटारियो एलटी। उसमें एक प्रोग्राम वो बता रहे थे स्कोप का, और वो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में आप लोगों को उसमें बारे में दे सकती हूँ, कि उसमें ही कि फैमिली इमरजेंसी की विजिट्स कैसे कम की जाए लोगों की। ठीक है ना, तो इमरजेंसी में ऐसे नहीं कि रोके नहीं, लेकिन इमरजेंसी में जाने की जरूरत भी है, तो रोके मतलब उसको बेहतर कैसे करें, क्या ऑल्टरनेटिव। तो वो एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है डॉक्टर्स का। और उसमें ये कि जो फैमिली डॉक्टर है वो अगर समझता है कि ऐसी कोई जरूरत है किसी मरीज को, तो वो स्कोप को रेफर कर देता है, विच इज अगेन अनदर टीम ऑफ डॉक्टर्स। तो अगेन आई मीन सुबह एक मीटिंग थी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है। तो अगर पहले से कुछ प्रिवेंशन कर ली जाए, पहले से एडवांस केयर प्लान कर लिया जाए, पहले से फैमिली डॉक्टर से बेहतर तौर से बात कर ली जाए, तो हम इस चीज से बच सकते हैं कि एकदम से तबीयत खराब हुई और भागे इंटेंसिव केयर में लेके, ये इमरजेंसी में लेके, और उसका कोई फायदा भी नहीं। अब आई वाज टॉकिंग टू अ बंच ऑफ पीपल द अदर डे, एंड दे सेड इमरजेंसी में यहाँ जाओ तो मुझे 9 घंटे रखो और टाइलेनॉल खिला के Yeah. भेज। तो ये भी एक कंप्लेन है, और विच इज ट्रू, Yeah. बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। तो ये बताइए कि क्या इमरजेंसी में जाने की जरूरत भी थी। आप समझो, तो हमारी कम्युनिटी को, हमें बहुत सारी अवेयरनेस इसके बारे में चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो भी हैं, उनको अपने बुजुर्गों से थोड़े वक्त में बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि मुश्किल है, बट इट्स इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब नामुमकिन नहीं है। तो उनको समझाएं कि देखो अंकल जी या माता जी जो भी, अगर आप ऐसे इस बात को समझ लेंगी तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। और ये जो वक्त जाया होता है, या लोग इंटेंसिव केयर में जो आप जो बता रहे हैं रेशो और जो परसेंटेज, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने सही रिसर्च की है। अपनी कम्युनिटी को समझते हुए ये हमारे यहाँ होता है कि भागो हॉस्पिटल, क्योंकि हम वो माइंडसेट से आ रहे हैं पीछे, कि जरा सा कुछ वो हॉस्पिटल भागेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फौरन। ये जो एक सिस्टम है यहाँ का, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, और उसको फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगी सिचुएशन, बहुत बेहतर हो जाएगी अगले 10 साल में इंशाल्लाह। या Great, great. Thank you. I guess we'll wrap up now, Vipul. Sure. So I think all good points, well worth discussing. और सी पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में फैमिली में दो चीजें होती है, या तो इट ब्रिंग्स ऑल द फैमिली मेंबर्स मच मोर क्लोजर टू ईच अदर, या तो दे ड्रिफ्ट अपार्ट सो मच कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, मेरी खुद की प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए क्या करूं, and then more friction, more tension. So either the family will really bond very well, or they will all go in their own different directions. So ऐसे टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि ऐसे we keep discussing these issues. ये palliative care जैसा issue is very important for people to understand, to realize, and as you said, wake up before it becomes too late. So thank you for doing what you are doing. And so Tejas, before we wrap up, let us just recognize the support of the city and of our other sponsors. Yeah, 1 second. And thank you very much for having me, and thank you everybody who's listening to this program. और मेरे ख्याल में आप लोगों ने मुझसे कितने 100 questions तो कर लिए कि नहीं? This was needed. I think it's wonderful work जो आप लोग कर रहे हैं, और ये community में बहुत सख्त जरूरत है इसकी. Yeah, hats off to you guys. Yeah, thank you. Thank you. Well, the only reason why we ask is, because as you said yourself rightly, sometimes people don't ask these questions. Absolutely. Sometimes they are not even aware that they should be asking these questions. Oh yes, yeah. If they are aware, then they don't know whom to ask these questions. Yes. So yes. there are plenty of questions about the questions themselves. Mm-hmm. So that's why we have to do these things.
Anyway, but before we wrap up, once again, let me recognize the support. This health forum is funded in part by the City of Brampton's Advanced Brampton Fund. We are thankful to our partner organizations, PCHS Foundation and Suno Canada, and matching funding support provided by Truly Financial, Irwin Accounting and Tax Services, Best Ayurved, Process Research or Tech, Dentistry on 10, Nanak Flights, Kotak Personal Injury Law, Tangentia, Cranes Life Sciences, Blue Umbrella Financial Services, and Lotus Funeral and Cremation Center, as well as all the members of the Canada-India USA Development Forum. So I believe that's it for today, and we'll be happy to reconnect. And if anybody needs such services, or if you want to share any updates bit later on in the future, please feel free to consider this as your own organizations, and we'll be happy to pass on the information to people. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye.